Good morning, class. We are doing chapter number 13, the nationalist movement. Today we will read about the Mountbatten plan. तो अब हम अभी तक डिस्कस कर चुके थे स्टोरी की कैसे अब जो है ब्रिटिश हार चुका था, वो इंडिया को सारी की सारी पावर जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार था। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी बना दी गई, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी कि जो मुस्लिम लीग है वो बहुत परेशान कर रही थी। वो चाह रही थी कि हम जो जितने भी मुस्लिम्स हैं, जितनी भी हमारी कम्युनल सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए एक अलग देश बनाया जाए, अलग कंट्री की डिमांड कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। अब हम पढ़ते हैं माउंटबेटन प्लान के बारे में। Admiral Lord Louis Mountbatten, who succeeded Wavell in March 1947, worked out to compromise after long discussion with the leaders of the Congress and the Muslim League. The country was to be free but not united. India was to be partitioned. A new state of Pakistan was to be created along with the free India. Pakistan would comprise Balochistan, Sindh, the northwest frontier province, and the Muslim majority areas of Punjab and Bengal. The princely states were given a choice to join either India or Pakistan or to remain independent. The Mountbatten was given a legal effect by the India Independent Act in July 1947. The two independent dominions of India and Pakistan were created at midnight on 14 to 15 August 1947. Most of the princely states joined the Dominion of India by signing the instrument of accession before 15 August 1947. Vallabhbhai Patel played an important role in this process. Muhammad Ali Jinnah became the first Governor General of Pakistan. Lord Mountbatten, the Viceroy of British India, became the first Governor General of the Dominion of India. He was succeeded by C. Rajagopalachari. The Constituent Assembly became India's parliamentary and Jawaharlal Nehru, India's first Prime Minister. Thus, India finally emerged as an independent nation after more than 200 years of colonial rule. The happiness of winning independence was somewhat reduced by the huge amount of bloodshed that communal riots caused during partition. More than 1 lakh people were killed, and several times that the number had to leave their homes for new destination in either India or Pakistan. Although the riots, Gandhiji tried to restore peace, harmony, and Hindu-Muslim unity. On 30th January 1948, he was shot dead by a Hindu fanatic named Nathuram Godse. The entire country was plunged into grief as the father of nation became a martyr to the cause of communal harmony. अब क्या होता है कि जो माउंटबेटन है, लुईस माउंटबेटन, ये हमारे वाइसरॉय होते हैं इंडिया के उस टाइम पे। तो ये कांग्रेस के साथ जब एक लंबी बड़ी डिस्कशन के बाद ये मुद्दा निकल के आता है कि ये जो कंट्री है, जो इंडिया देश है, इसको फ्री तो किया जा रहा है, लेकिन ये यूनाइटेड नहीं होगा, यानी कि एक साथ नहीं होगा, हिंदू मुस्लिम यूनाइट नहीं होंगे, क्योंकि इंडिया का पार्टीशन हो रहा था और एक नई स्टेट पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ क्रिएट कर दी गई कि पाकिस्तान को अलग किया जाएगा। उस डिस्कशन में यही फैसला लिया जाता है। और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन सी कंट्रीज आएंगी, उसमें था बलूचिस्तान, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज थे जितने भी पंजाब में और बंगाल में। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स थी, उनको स्टेट्स जितनी भी स्टेट्स थी उनको चॉइस दी गई, या तो आप इंडिया में रहो या आप पाकिस्तान में रहो, या फिर अगर आप इंडिपेंडेंट रहना चाहो तो वो भी रह सकते हो। अब ये दोनों देशों का जो स्टेटस था, डोमिनियन स्टेटस था, इसको किस टाइम पे बनाया गया? 14 और 15 अगस्त 1947 मिडनाइट, यानी कि रात को बनाया गया 12 बजे से पहले। इसलिए जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे है वो 14 अगस्त को मनाया जाता है और इंडिया का इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को मनाया जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि काफ़ी सारे जो लोग थे, ऐसी स्टेट्स थी जिन्होंने साइन किया था एक डॉक्यूमेंट पे, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन बोला जाता है। उन्होंने 15 अगस्त 1947 से पहले ही उस पर साइन कर दिया था और बोला था कि हम इंडिया में ही रहना चाहते हैं। बहुत से मुस्लिम्स भी थे ऐसे जो कि इंडिया में ही रहना चाहते थे। इस सारी प्रोसेस में सबसे जो बड़ा रोल रहा है वो किसका रहा है? वल्लभ भाई पटेल जी का रहा है। उसके बाद जब पाकिस्तान एक नई कंट्री बन जाती है, इंडिया एक अलग कंट्री हो जाती है, पार्टीशन हो जाता है, तो जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो इंडिया के ब्रिटिशर के थे, वो इंडिया में लास्ट वाइसरॉय थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल बने डोमिनियन ऑफ इंडिया के। इन्होंने ये किससे जीते थे? सी गोपालाचारी जी से जीत गए थे ये। और जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है इंडिया में, इंडिया पार्लियामेंट बनाया गया था, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी को पहला प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था। और उसके बाद ये जो दो नेशंस हैं, ये
2 सालों के बाद एक रूल से, यानी कि इन्हें 200 सालों के बाद आज़ादी मिली थी। अब क्या होता है कि ये जो खुशी है जीत की, ये कहीं न कहीं कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर हमें आज़ादी तो मिल गई, लेकिन इतना ब्लड शेड हुआ, इतना खून बहा, क्योंकि दंगे इतने ज़्यादा चल रहे थे, हिंदू मुस्लिम को मार रहे हैं, मुस्लिम हिंदू को मार रहे हैं, पार्टीशन हो गया, बहुत से लोग बेघर हो गए। नियर अबाउट 1 लाख से ज़्यादा लोग जो है उस टाइम इन दंगों में मर चुके थे, और लोग जो हैं बेघर हो गए। इसके साथ-साथ उन्हें नई जगह पर जाके शुरू से शुरुआत करनी पड़ी, जिसके कारण उन्हें बहुत तकलीफ़ आई। कहीं न कहीं गांधी जी और उस बाकी और जो लीडर थे, वो देश में उन्होंने हार्मनी और शांति बनाए रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा प्लान्स बनाए और काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करी। उसके बाद 30 जनवरी 1948 को गांधी जी को जो है वो नथुराम गोडसे ने गोली मार दी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो कॉमनली हार्मनी है, यानी कि जो ये भेदभाव हुआ है, ये कहीं न कहीं गांधी जी इसके ज़िम्मेदार हैं। तो उस दिन गांधी जी ने शहीद होकर अपने देश के लिए अपनी जान दे दी। सो योर चैप्टर इज़ ओवर। दिस चैप्टर इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट. Read the chapter very carefully. Thank you so much.